اور اب خبریں تفصیل سے۔ سری نگر کے ہفت چنار علاقے میں آگ کی ہولناک واردات میں ایک عورت اور ایک کے 5 سالہ بیٹے کی جھلس کر موت ہو گئی ہے۔ اس آگ نے 6 گھروں کو سڑک پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ ہفت چنار کے مقامی لوگوں کے مطابق آگ اس دکان سے شروع ہوئی۔ دکان کے اوپر غلام محمد شیخ کا آشیانہ تھا جو آگ کی نظر ہوا، اور اس آگ نے نہ صرف آشیانہ جلا دیا بلکہ ان کی بیوی اجمیرہ اور 5 سال کا بیٹا بھی اس ہولناک آگ میں جھلس کر فوت ہو گئے۔ اجمیرہ اور ان کے کمسن بیٹے عباس کی لاش دکھانا ممکن نہیں، شاید کیمرہ بھی یہ دلدوز منظر نہ دکھا سکے۔ ان کی یاد کے طور شاید کوئی تصویر بھی نہ بچی ہو، کیونکہ اس بھیانک آگ میں بس سیمنٹ کی یہ چھت بچی ہے۔ دکان نیچے ہے اور ایک کمرہ اوپر تھا اور لیٹر ساتھ میں لیٹر باتھ روم، تو سب جل کر راکھ ہو گئے، اور ساتھ میں 6 مکان اور بھی جل گئے، پورے جل گئے سر۔ آپ کی تو بھابھی گزر گئی؟ میری بھابھی گزرے، میرا وہ بھانجا تھا وہ بھی گزر گئے، بھتیجا بھتیجا وہ بھی۔ یہ عبد الحمید شیخ کی گھر کی راکھ ہے۔ ان کی اہلیہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ یہاں کوچے میں دم بخود اس راکھ کو تک رہی ہیں۔ کہتی ہیں کہ بڑی بیٹی کی شادی کے لیے جو کچھ بھی جمع کیا تھا وہ بھی آگ کی نظر ہو گیا۔ میں اس کور کت رٹت تم سم جائیداد وادات سہ دت سورے 3 کور چھم بی نکاح اخ لکٹ۔ بشیر احمد نے اننت ناگ میں سب کچھ بیچ کر یہاں یہ آشیانہ کھڑا کیا تھا۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ابھی یہ گھر خریدنے کے لیے لیا قرضہ اترا نہیں کہ گھر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ سوری قرض میں سوری کورمت گھر یہ بہت 10 ورین کرایس، مے بڑ ماج مہرین کوڑ وٲژمٕژ۔ اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے کانٛہہ سہارا، مےٚ روٗد نہٕ گرِ تہِ کینٛہہ، اَسہِ کُن تَتہِ سورُے ییٚتہِ حِساب۔ یِمن کٔرِو اَسہِ ہیلپ اورٕ یور تہٕ مُشکِلی سان کَرِ یِمو گُزار یہِ تھوڑا یہِ پچہِ ڈوکہٕ بنٲیِکھ، اَتھ تہِ لوگُکھ نار حظ۔ یِمن چھِ گورمنٹس چھِ یِوان یہِ أپیٖل کرنہٕ اَسہِ حظ گُزٲرِش کرنہٕ تاکہِ یِمن بٔچِیَن ہُنٛد سونٛچن یِم حظ۔ ہۄپٲرۍ گُزریو یہِ حظ یہِ زٕ ڈیڈ باڈی درٛایہِ حظ اَتہِ حظ۔ ہفت چنار سری نگر میں لگی اس آگ میں 6 رہائشی گھر جل گئے۔ ابتدائی رپورٹ میں شارٹ سرکٹ آگ کی وجہ بتائی جا رہی ہے، لیکن تحقیق ابھی جاری ہے۔ سری نگر میں پچھلے کچھ مہینوں سے کئی بار آگ کی واردات رونما ہوئی، لیکن یہ آگ سب سے بھیانک رہی کیونکہ اس میں 2 جانیں تلف ہوئیں، اور جو لوگ اس میں متاثر ہوئے، جن کے گھر جلے، جن کے ارمان جلے، جن کے آشیانے جلے، وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں۔ یہ غریب لوگ اب سڑک پہ آ گئے اپنے عیال کے ساتھ۔ اب یہی امید ہے کہ سرکار ان کی حالت دیکھ کے ان کی مدد کرے تاکہ ان کو ایک چھت کم سے کم میسر ہو۔ فیروز وانی کے ساتھ شبیر احمد، نیوز 18 اردو، سری نگر۔ کپواڑہ ضلع کے راجواڑ ہندواڑہ کے جنگلات میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب پولیس نے علاقے کے نزدیکی جنگلات میں انسانی ہڈیوں کا ڈھانچہ برآمد کیا۔ پولیس نے فوری طور پر اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ اسپتال ہندواڑہ منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نے اس ڈھانچے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ ادھر ایس پی ہندواڑہ نے نیوز 18 اردو کو فون پر جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ تمام قانونی لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کس کا ڈھانچہ ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ طور پر تحقیقات شروع کی گئی ہے۔ اسکیلٹن لایا ہے، یہ پولیس اسٹیشن ہندوارہ کی طرف سے ہمیں یہاں لایا گیا، ابھی لایا گیا ہے۔ یہ پورا اسکیلٹن نہیں ہے، مطلب اسکیلٹن ہے لیکن پورا نہیں ہے۔ اب اس کا دیکھنا ہے ہمیں، جینڈر میل ہے فیمیل ہے، ایج کیا ہے، مطلب اس کا سب کچھ۔ اب ہم نے اپنے ہاسپٹل کی طرف سے ایک کمیٹی بنائی ہے، 3 ڈاکٹرز کی کمیٹی بنا، اس میں سرجن ہے، ڈینٹسٹ ہے، ریڈیالوجسٹ ہے، تو وہ ایسس کریں گے اس باڈی کو، دیکھیں گے کہ کیا ہے، فرامافیشیا کیا ہے، وہ اپنا رپورٹ پیش کرے گا۔ ابھی تک اس کی نہ کوئی آئیڈینٹی ہے نہ کچھ ہے۔ چھتیس گڑھ کے بستر ریجن میں نکسلی حملے کے بعد لاپتہ ایک جوان کے گھر والوں نے حکومت سے اپیل کی ہے۔ جموں کے رہنے والے لاپتہ جوان راکیشور سنگھ منہاس کے گھر والوں نے ان کی بحفاظت واپسی کی اپیل کی ہے۔
कहा जा रहा है कि हमले के बाद नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह का अगवा कर लिया है। राकेश्वर की अहलिया मीनू मिन्हास ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से इनकी शौहर की हिफाजत के साथ घर वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। वाज़ेह है कि बस्तर नक्सली हमले में 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। मोदी साहब से और अमित शाह से कि उनको वापस मंगवा लो, वो जहाँ भी है उनकी कोई इन्फॉर्मेशन मिले उनको मंगवा लो वापस। मेरी हमसे यही अपील आपसे, अगर वो सुरक्षित है उनको वापस मंगवाओ, कहीं से भी कैसे भी करके उनको मंगवा लो वापस। मैं मोदी जी से यही अपील करती हूँ कि उनको वापस मंगवा लो, चाहे जिस भी जैसे उसको अभिनंदन को पाकिस्तान से लाया था वैसे इनको भी ला दो। तो आपको सीआरपी से कोई ऑफिसर ने बताया कि वो मिसिंग है, ऐसे बात? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, हम कंट्रोल रूम फ़ोन करे जा रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कहते। जैसे हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बताएंगे, पर वो परसों से कोई इन्फॉर्मेशन हमें आज तक नहीं दे रहे। हम जो भी देख रहे हैं वो न्यूज़ में सुन रहे हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं मिल रही है। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। जोड़ के बोल कभी बोल रहे हैं दे आर मार्टेड, कभी बोलते हैं दे आर मिसिंग। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ चैनल्स सेइंग दे आर मार्टेड, मोस्ट ऑफ द न्यूज़, देन after some time they are saying they are still missing. One person is missing. His name is Rakeshwar Singh Manas. I think IG or DG confirmed at the evening of the yesterday they are still missing. हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा जीजा जी को जल्दी से जल्दी वापस, हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। समाज सुधार सेवा सोसाइटी के कारकुनों ने पुंछ में एहतजाज किया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले के खिलाफ यह एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो नक्सलियों का सफाया करने के लिए ठोस इक़दाम करे। वादियों ने जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो है घातक अटैक किए है, जिससे हमारे जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूँ इसकी कि जब देश के बीच एक पावरफुल सरकार बनी थी तो उन्होंने ये कहा था, उनके मंत्रियों ने ये कहा था, हर मंच पे ये कहा था कि देश हमारा अभी सुरक्षित हाथों में है। मैं उन मंत्रियों से, उस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जो देश की सुरक्षा के लिए सीमा पे तैनात हैं वो खुद सुरक्षित नहीं है तो हमारे जवान, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देश तरक्की तब करेगा जब हम नक्सलवाद को, आतंकवादियों को। कपूरथला जेल में कैद त्राल और अवंतीपुरा के 7 नौजवानों के अफराद खाना ने डाटसरा त्राल में एक पुरअमन एहतजाज किया। उनका कहना है कि उनके बच्चे 2 सालों से कपूरथला सेंट्रल जेल में जालंधर में कैद हैं। ये नौजवान मिलिटेंसी से जुड़े केसों में बंद हैं। इनके वालिदैन ने इनकी रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि जेल में इन्हें सहूलियात मैसर नहीं रखी जा रही है। मगर गवर्नमेंटस इंसाफ बस करान अपील सारे गवर्नमेंट कन ये आला हुकामस ये गवर्नर हुकूमतस मोदी साहबस पंजाब किस मिनिस्टरस सान बचन पे करतो इनसिम करतो बाइज्जत रहा। 7 लड़के सन लड़के बंद इन सत बड़न आज सफी कर आज तमो कोर ओतर कोर तमो STD पे फोन दोपक गसान ना इंसाफी राशन दिवान ठीक कह वो रिक्वेस्ट कर तुहद वसादत सत गवर्नमेंटस कर हर आला कमान सत कत बात तो सान बटन पर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बैक टू विलेज मुहिम के दौरान किए गए वादों पर हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एक मुहिम लॉन्च करने का ऐलान किया। कांग्रेस चली गांव की ओर मुहिम के दौरान जमीनी सतह पर हुए कामों का जायजा लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर GA मीर ने ज़िमन में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक मीटिंग मुनक्किद की। मीर ने कहा कि जमीनी सतह पर कोई काम नहीं हुए। मीर ने कहा कि गाड़ियों के दोबारा रजिस्ट्रेशन और महंगाई अहम मौज़ूआत हैं जिनसे लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। गाँव में जाते हैं या वहाँ से रिपोर्ट लेते हैं तो जो उनके रूटीन काम है वो भी नहीं हो रहे। जो पंचायतों के ज़रिए रूटीन फंडिंग जाकर के रूटीन उनके गली नाले आए हुए बाथरूम जो बनने चाहिए थे, ऊपर सरकार तो बड़ा उसमें फिगर दे रहे हैं मगर ग्राउंड पर तो वो सब चीज़ नहीं है। इसलिए हमने अगले 45 दिन डेडिकेट कर दिए पूरे कांग्रेस पार्टी ने। हमारी सारी रैंक एंड फाइल्स एक हर पंचायत में जाएंगे, वहाँ लोगों के हर किस्म के क्रॉस सेक्शन के लोगों को बुलाएंगे और पता करेंगे कि ये बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3 में जो उन्होंने डिमांड्स दी थी उसमें ज़मीनी सतह पर क्या मतलब हासिल हुआ, क्या उनको अचीव हुआ, क्या उनको इस सरकार ने अभी तक उसमें फ़ायदा पहुंचाया। तो इसलिए
हमने आज तय किया है कांग्रेस चली पंचायत की ओर, ये हमारा मोटिव होगा। एक पंचायत बिठाएंगे, उसमें 5 सरपंच भी बैठ सकते हैं, उसमें नॉन 5 सरपंच भी बैठ सकते हैं, उसमें कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। कॉमन लोग उस गांव के उनको बिठाएंगे और वहाँ वेरीफाई करें कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो इनके फेजेस चले उसमें लोगों ने डिमांड दी क्या थी, अर्जेंट डिमांड क्या थी, लॉन्ग टर्म डिमांड क्या थी, उसमें अभी तक 4 साल के अंदर उनको अचीव। जम्मू कश्मीर में कल कोविड का बहाना देकर स्कूल 1 से 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए। हैरत की बात यह है कि स्कूल एजुकेशन के आला अफसरान तक को एलजी मनोज सिन्हा का ट्वीट आने के बाद भी ये पता नहीं कि आगे का लाहेअमल क्या है। पेश है श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज स्कूल बंद हैं, लेकिन कहीं असातिज़ा हाजिर हैं तो कहीं नहीं। ऐसा शायद पहली बार हुआ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्कूल बंद करने का ऐलान ट्वीट के जरिए किया, और जब ये ट्वीट आया तो महकमा स्कूल एजुकेशन के आला अफसरान तक को इसकी खबर नहीं थी। फिर कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। ट्वीट में 9वीं जमात तक के स्कूल 2 हफ्ते के लिए और 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल 1 हफ्ते तक बंद रखने का ऐलान किया गया। असातिज़ा को स्कूल में हाजिरी देनी है या घर से ऑनलाइन क्लास देनी है, इस पर कंफ्यूजन बना रहा, क्योंकि स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इस पर वो हुकूमत के साथ बात करने के बाद ही बता सकते हैं। उधर सीईओ श्रीनगर ने एक सर्कुलर जारी करके ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत जारी की, लेकिन जिससे कंफ्यूजन बढ़ गया। कई लोग हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल बंद करने के जवाब पर ही सवाल उठा रहे हैं। अत मज अगर गवर्नमेंटस ये सिर्फ करन बंद प्राइमरी स्कूल, अगर यहां मिडलस तान अगर चल, मगर हाई तो हायर सेकेंडरी गन बंद गन कहें, क्या बच्चे जानान क्या मास्कस यूज, सैनिटाइजरुक यूज, मगर मे बसान यह सही 2 ट्वीटन मज गो वन स्कूल अड़ बंद पत बे अड़ बंद, इन पज सही या ट्वीट कर या आर्डर दिन करेक्टली। टीचरस बिचारिस वनु यह हमेशा बली का बकरा, कोविड ड्यूटी एयरपोर्टन तिमन डॉक्टरन से तिमन पत ये स्कूल लगन कड़नक किक आउट, पत वन गु सा इत ट्यूलिप गार्डन बर बर तक कह वुचान। जहां तक कोविड-19 के स्कूल्स में फैलाव का ताल्लुक है, तो एक दिन पहले तक के सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक कश्मीर के स्कूलों में 50,957 टेस्ट करने पर कुल 367 कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। कई लोगों का कहना है कि कश्मीर के किसी भी अवामी जगह पर अगर रैंडम टेस्टिंग की जाए तो इससे ज्यादा कोविड मुस्बत केस एक ही दिन में मिल जाएंगे। आज भी बाजारों, बागों और दीगर अवामी मकामात पर लोगों की एक बड़ी तादाद बगैर मास्क के घूमती नजर आ रही है। पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं। अगर आप पहला ऑर्डर जो आया वो देखें तो उसमें बताया गया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस आएंगे। आर भटनागर जी ने ऑर्डर इशू किया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं गवर्नमेंट के, उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि डीसीज देखेंगे कि क्या करना है, खोलना रखना है या बंद रखना है। उसके बाद कल अचानक से एक ट्वीट आ जाता है कि स्कूल्स जी बंद हो गए अप टू 12th स्टैंडर्ड। तो पहली बात तो ये है कि रिक्वायरमेंट 12th स्टैंडर्ड तक की नहीं थी, प्राइमरी लेवल तक की ही थी। उसके बाद अगर आप चलें इतने ऊपर तक आप जा ही रहे हैं तो फिर कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर ज़्यादातर रश है, यूनिवर्सिटीज़ में है तो वो भी बंद होनी चाहिए, कोचिंग सेंटर्स में रश होता है वो भी बंद होने चाहिए। एक तरह का केओस ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दिख रहा है, उनके दिमाग में कि करना क्या है उन्हें अभी तक इसका कुछ मालूम नहीं। उधर स्कूल बंद करने और आवाम की बड़ी तादाद जमा करने के सरकारी इक़दामात को सियासी लीडर भी कंफ्यूजन से ताबीर कर रहे हैं। किसी भी डिसीजन में इनकी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। विद द रिजल्ट पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर सफरिंग। आप देखिए, एक तरफ आप स्कूल बंद कर रहे हैं और एक तरफ आप मिडिल सीजन में टुलिप फेस्टिवल लगा रहे हैं, और वो भी मैनेज्ड शो। और किस तरह से हज़ारों की तादाद में, कल मैं खुद उस रास्ते में था, किस तरह से टोटल अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कोविड रूल्स। कोई उसमें फॉलो अप नहीं था, कोई उसका देखभाल नहीं था। अगर उतनी बड़ी गैदरिंग आप जमा कर सकते हो, आपके एडवाइजर्स, आपके कमिश्नर सेक्रेटरीज, आपके डिप्टी कमिश्नर्स उसको मॉनिटर कर रहे थे, तो आप फिर 200 लोगों के स्कूल को क्यों नहीं चला सकते। सोशल मीडिया पर भी बादामबारी और ट्यूलिप फेस्टिवल को लेकर भी खूब फिक्रे कसे जा रहे हैं। लेकिन इस मामले का एक और पहलू ये भी है, अक्सर सियाहती मकामात पर मकामी लोग ही ज्यादातर बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।
कोविड के बढ़ते केसेस की वजह से सरकार ने एहतियात के तौर पर स्कूल बंद करने का फैसला किया। ताहम मुख्तलिफ इलाकों से वालिदैन, तलबा और असातिज़ा इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए। उनका कहना है कि स्कूल बंद रहने से तलबा का मुस्तकबिल तबाह होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सियाती मकामात और सियासी रैलियों पर कोई पाबंदी नहीं है तो सिर्फ तालीम का शोबा ही क्यों मुतासर हो। आप देख लीजिए पार्कों में किस तरह लोग जा रहे हैं, टुलिप गार्डन खुला है, वहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, मार्केटों में लोग खुले घूम रहे हैं, किसी को कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर पाबंदी लगाई जा रही है। जिस स्कूल में ये बच्चे जहाँ पॉजिटिव निकलेंगे उन्हीं स्कूलों को बंद करने चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लग चुका है। हमारी जो बच्चे कश्मीर के बच्चे वो अनपढ़ रह जाएंगे। क्लास प्रमोट करने से इस मसले का हल नहीं है, उन्हीं स्कूलों को बंद किया जाए जो जहाँ पॉजिटिव ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट होने बोल रहे हैं, उनका जो बोला जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें अभी भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। कुछ बच्चे जो हैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके वालिदैन के पास वो इस्तिताअत नहीं है कि वो मोबाइल फ़ोन लेके आए। अगर खुदा न खास्ता किसी स्कूल में पॉजिटिव भी आते हैं, फिर आप उसी स्कूल को बंद कीजिए, दूसरे स्कूलों को खुला रहने दीजिए। गवर्नर साहब से कहा था कि ऑनलाइन क्लासेस होंगे। हम गाँव से हैं, वहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता है, किसी बच्चे के पास तो फ़ोन ही नहीं होता, वो उनके पास फ़ोन ही नहीं होता, हमारे वहाँ इंटरनेट ही नहीं चलता। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जिला कठुआ के जगतपुर इलाके में एक 85 साला शख्स की पुरस्रार मौत हो गई है। उसके अहले खाना ने इसको कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया है। बाद में पुलिस जाए वारदात पर पहुंच गई और लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। डीएसपी हेडक्वार्टर माजिद महबूब ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सब कुछ खा दे, सब कुछ खा दे, वजह जमीना दी उसी दे नींदरा दी टिक्कियां इन्हें पागल किते दा। जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट लाओ और इना मेरे प्यो दा दुख मुकना चाहिए। बस रोज ये सुनते है कोला भाई मार देन उसी मार देन साडा भी प्यो दा के सारे दा बनदा है भाई। अस अपने 7-8 दिन अपने प्यो दी सेवा करा, सानू इन मिलन तक नहीं दिता, खाने पीने दी चीजें। पुंछ के मंडी कस्बे में दरियाए पुलिस के करीब एक शख्स की लाश बरामद की गई। इस बात की इत्तला मिलते ही लोगों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई। पुलिस एहलकारों ने जब लाश की तलाशी ली तो एक शनाख्ती कार्ड मिला, जिससे मरने वाले की शनाख्त राजपुरा के रहने वाले मंजूर अहमद के तौर पर हुई है। मंडी अस्पताल में पोस्टमार्टम और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। लवाहिकीन के मुताबिक मंजूर अहमद काफ़ी दिनों से बीमार था और आज भी पुंछ में डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद वो मंडी लौटा था। बांडीपुरा गुरेज सड़क से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हो गया है। उम्मीद की जा रही है कि आइंदा कुछ रोज के अंदर इस सड़क पर गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। बांडीपुरा गुरेज सड़क भारी बर्फबारी की वजह से कई माह से बंद पड़ी है। मकामी लोग गुरेज तुलैल में ग़िज़ाई अजनास की किल्लत को लेकर इस सड़क को फौरी तौर पर खोलने का मुतालबा कर रहे थे। कहते हैं डीसी साहब को, गुरेज तुलैल की हालात बखूबी जानता है। 6 महीनों से रास्ता बंद होने की वजह से सब्जी, आशियाई खुर्दनी, इन चीज़ों की बहुत कमी है गुरेज तुलैल में। हम बहुत डीसी साहब के मतलब शुक्रगुजार है कि रोड जो खोले गए हैं, कि उम्मीद है हम कि कल तक गाड़ियों का इजाज़त दिया जाए ताकि आशियाई खुर्दनी जो कुछ भी है गुरेज। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जियोलॉजी एंड माइनिंग के इश्तराक से सराय टंगमर्ग में नाला फिरोजपुरा से बाजरी निकालने, इसके असरात और नाले से बाजरी निकालने के पेशे से मुंसलिक लोगों को एतमाद में लेने से मुतल्लिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला, रीजनल डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस दौरान ताहम कोई हतमी फैसला नहीं लिया गया। नाला फिरोजपुरा में बाजरी और रेत निकालने का ठेका गैर रियासती ठेकेदारों को बजरिए टेंडर दिया गया है। इस पर टंगमर्ग में लोग एतराज जता रहे हैं। लोगों ने कहा कि टंगमर्ग में नाला फिरोजपुरा में मिल्कियती अराजी और सरकारी अराजी की निशानदेही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाले से बाजरी निकालने के दौरान मकामी लोगों को काम पर लगा देना चाहिए। जितना भी हमने मुतालबात किए वो लिखकर हमारे सामने नहीं लाएंगे, तब तक हम न दस्तखत करेंगे। इस रोजी कमाने से दूर रखा जाए तो यहाँ हर एक बुराई जन्म लेगी। माइनिंग वाले चेतावनी दिवान
اگر تمو آئیڈینٹیفائی یہ زمین کر کہاں یمو تم سات کیا بلائے سن گامک زیزت باشور یہ انسان. نمبر 4 کا جو آلریڈی ای آکشن ہو چکا ہے تو اس کے سلسلے میں انوائرمنٹ والوں نے ایک پبلک ہیئرنگ رکھا تھا تو اس میں ہر ایک نے اپنی اپنی اوپینین رکھی. تو اب یہ جو ہماری انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ اتھارٹی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے. سری نگر کے سب سے کمسن وشو کھلاڑی کے حوصلے کافی بلند ہیں. قومی ٹورنامنٹ میں شکست کے باوجود ماسٹر مومن ملک نے اب سخت جدوجہد کا عزم کر رکھا ہے. ماسٹر مومن اپنے کوچز سے مکمل تعاون حاصل کرتے ہوئے آئندہ ٹورنامنٹس میں جیت کی تیاریوں میں مصروف ہے. ہمارے چیف کرسپونڈنٹ پرویز بٹ کی ایک رپورٹ. اپنے حریف کھلاڑیوں پر مکوں اور گھوسوں کی بارش کرتے ہوئے اسے پسپا ہونے پر مجبور کر دینے والا یہ کمسن لڑکا ماسٹر مومن علی مالک ہے. سری نگر کی سب سے کم عمر وشو کھلاڑی نے قومی اور ریاستی سطح کے مقابلوں میں کئی گولڈ میڈل جیتے ہیں. مومن جب 5 سال کا تھا تو اس نے تبھی سے مارشل آرٹس سیکھنا شروع کر دیا تھا. رانچی میں منعقدہ سب جونیئر نیشنل چیمپئن شپ میں مومن نے پہلی فائٹ جیت لی تھی لیکن وہ دوسرا مقابلہ ہار گیا تھا. یہ شکست اس کمسن فاتح کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکی. مومن نے قومی مقابلوں میں گولڈ میڈلز اپنے قبضے میں کرنے کا تہیہ کر لیا اور اسی لیے وہ اس طرح کی سخت مشقوں میں مصروف رہتا ہے. نیشنل کھیلا میں انشاءاللہ انٹرنیشنل کے لیے جاؤں گا کھیلنے. ادھر میں اپنے جموں اینڈ کشمیر کے لیے گولڈ میڈل لاؤں گا. اور یہاں پہ ہمارے 4 کوچز ہیں, عرفان سر, اعجاز سر, رمیز سر اور مقصود سر. یہ سارے ہم نے کووڈ میں بھی پریکٹس کرواتے تھے. مومن آرمی گڈ ول پبلک اسکول کا طالب علم ہے. اسکول والوں کو بھی مومن پر فخر ہے. مومن اپنے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ روزانہ سری نگر کے اس گنڈون اسٹیڈیم میں پریکٹس کرتا ہے. مومن کے کوچز کو ان سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں. ان کا ماننا ہے کہ اگر اس کمسن کی یہ سخت مشقیں جاری رہیں تو قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں بھی یقیناً اپنی پہچان بنا لے گا. یہ ہم نے اس کو تائیکوانڈو میں دیکھا, اس کی کیکنگ بہت اچھی تھی. تو جب یہ یہاں پہ ووشو میں آئے, انہوں نے پریکٹس کی یہاں پہ, تھوڑا سا ان کو یہ گیم اچھی لگی. ان کے پیرنٹس ان کو وہاں پہ لائے تو انہوں نے, مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا کرے گا. تو اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ ہماری ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ تھی, انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا. تو پھر آہستہ آہستہ یہ پریکٹس, ہمارے کوچز ان کو پریکٹس کراتے رہے. تو اس کے بعد اسٹیٹ چیمپئن شپ تھی, اس میں بھی اس نے گولڈ میڈل لایا. تو حال ہی میں ہمارا وہاں پہ جموں میں ٹرائل تھی, سلیکشن ٹرائل سب جونیئر کی. تو انہوں نے وہاں پہ 2 فائٹیں کے لیے اس میں اس کی سلیکشن ہوئی. میں خود ایک آرمی گولڈ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں, ایکس اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں ایک انٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں اور ایک اسٹیٹ ایوارڈی بھی ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس اسکول سے ایک اور بچہ نکلا ہے کہ جو اتنا اچھا کھیلتا ہے. تو اس نے وہاں پر رانچی میں 2 فائٹیں کھیلی. پہلی فائٹ اس نے کھیلی وہاں پر, تو اس نے پہلی فائٹ جیتی, وہاں 1 سائڈ سے جیتی پہلی فائٹ. دوسری فائٹ میں اس نے 90-20 سے ہارا. لیکن میں ایک چیز بتا دوں کہ مطلب اس کا پہلا نیشنل تھا, اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ وہ کھیل رہا تھا. تو مطلب اس کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس نے اتنا اچھا کھیلا وہاں پر. ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ماسٹر مومن اپنا خواب پورا کریں گے اور کشمیر کے ساتھ ساتھ ملک کا بھی نام روشن کریں گے. نیوز 18 اردو کے لیے سری نگر سے پرویز بٹ کی رپورٹ. جموں کشمیر میں کووڈ کے مزید 442 کیسز سامنے آئے ہیں. کشمیر ڈویژن سے 280 اور جموں ڈویژن سے 162 افراد کووڈ سے متاثر پائے گئے. کووڈ سے متاثرہ 2 افراد کی موت ہوئی ہے. مجموعی طور پر 2010 اموات ہوئی ہیں, جبکہ 241 مریضوں کو صحتیاب ہونے پر مختلف اسپتالوں سے ڈسچارج کر دیا گیا. یوٹی میں فی الحال 4154 ایکٹیو کیسز ہیں. بانڈی پورہ میں فوڈ سول سپلائز اینڈ کنزیومر افیئرز نے ایک متنازع حکم نامہ جاری کیا. حکم نامے میں لکھا تھا کہ 45 سال سے اوپر کے صارفین اگر کووڈ ویکسین نہیں لگائیں گے تو انہیں کسی بھی حالت میں راشن فراہم نہیں کی جائے گی. حکم نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ کووڈ ویکسین لگانے کی سرٹیفکیٹ دکھانے کے بعد ہی صارف راشن حاصل کر سکتا ہے. جو ہی عوامی حلقوں نے اس حکم نامے پر اپنی برہمی کا اظہار کرنا شروع کیا
तो महकमे ने फौरी तौर पर इस हुक्मनामे को वापस लिया। कठुआ में डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के तहसील ऑफिस में कोविड की टेस्टिंग शुरू की गई है। तहसीलदार कठुआ गौरव शर्मा ने बताया कि किसी काम से दफ्तर आने वाले अफराद का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, कोविड टेस्ट किया जा रहा है ताकि इस वबा को मजीद फैलने से रोका जा सके। कोविड केसेस में इजाफे के तनाजुर में पुंछ जिले का इंतजामिया ने भी इंतजाम सख्त कर दिए हैं। पुंछ में दाखिले के मरकज बिम्बर गली पर कोविड टेस्टिंग सेंटर को बहाल कर दिया गया है और जिले में आने वालों का कोविड टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव रिपोर्ट पर ही जिले में दाखिला दिया जाएगा। डीसी पुंछ ने एसएसपी बीएमओ मेंढड़ के साथ बिम्बर गली का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। लद्दाख यूटी में कोविड के 309 एक्टिव केसेस हैं। करगिल में 22 केस दर्ज किए गए हैं और बाकी केस लेह में हैं। करगिल में 31 मार्च तक कोविड के सिर्फ 5 केस थे। इंतजामिया ने सियासी, मजहबी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों की मीटिंग मुनक्किद करते हुए कोविड पर काबू पाने में ताउन तलब किया। डीसी और एलएचडीसी करगिल की अपील पर लोग मास्क लगा रहे हैं और दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। से मेरी अपील है कि आप सारे लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना और हैंड वॉश करना, उसका पालन करें। जैसा कि आप जानते हैं, कल भारत में करीब 1,03,000 से 4,000 केस आए थे। ये बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक है जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है हमारा। और आप जानते हैं कि अभी हमारा वर्किंग सीज़न भी शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ पे लेबर्स आ रही है, टूरिस्ट सीज़न शुरू हो रहा है और लेह में भी जैसे आप देख रहे हो कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तेज़ी से। तो मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी कि आप सारे लोग खुद भी मास्क पहने और दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए अपील करें। मारूफ अदीब शायर और मौरख अब्दुल अहद आज़ाद की 73वीं बरसी के मौके पर गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से बदरन मागाम में एक तकरीब मुनक्किद हुई। मरहूम की ज़िंदगी और अदबी कारनामों पर कई मकाले पेश किए गए। तकरीब की सदारत जनाब सैयद बशीर कौसर ने की। प्रोफेसर गुलशन मजीद मेहमान खुसूसी और शमशाद करालवारी और गुलाम हसन गमगीन मेहमान ज़ीवकार थे। मरहूम आज़ाद के नाम से मंसूब अब्दुल अहद आज़ाद मेमोरियल कॉलेज भिमना में आज़ाद के नाम पर एक अलहदा चेयर कायम की गई है। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नसरीन अमान ने इसका ऐलान किया। गुलाम हसन गमगीन की तसनीफ आब रहमत भी इजरा की गई। छुटू याद करान यम सुंद कश्र ज़बान तो अदबस वारियाह दियुत। पीर रूमी दारुल मारिफत कश्मीर ट्रस्ट ने टाउन हॉल गांधरबल में एक किताब का रस्म इजरा अंजाम दिया। मीर सैयद अली हमदान की फारसी किताब के कश्मीरी तर्जुमे का रस्म इजरा किया गया। कुलगाम के मीर शाह मुस्तफ़ा अलवी ने तर्जुमा किया है। मेहमानों ने खुसूसी प्रोफेसर बशर बशीर और डॉक्टर गुलाम नबी हलीम ने कहा कि यह किताब सूफीज़म के फ़रोग़ में माविन साबित होगी। के ग्राहकों के लिए, तसव्वुफ़ के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए ये एक बाइबल की हैसियत रखती है, एक गाइड बुक की हैसियत रखती है और बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जो इस वक्त का सूफ़ी होगा उसके लिए इस किताब का मताला बहुत ज़रूरी, चूँकि पहलवी ज़बान में थी, बहुत दकीक फ़ारसी इसमें थी, बहुत मुश्किल किस्म की फ़ारसी, जिसको बड़े नरम लहजे में और यहाँ के माहौल के मुताबिक शारिया ने शरह किया। न्यूज़ 18 उर्दू को चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। गंदो भलीसा के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने कहा कि न्यूज़ 18 उर्दू आवाम की आवाज़ है और चैनल ने हमेशा लोगों के मसाइल को उजागर करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। बहुत ही डेडिकेशन से इस चैनल ने काम किया और न्यूज़ 18 के इस बेहतरीन कारकर्दगी पे, बेहतरीन परफॉर्मेंस पे जो इनको अवार्ड मिला है, मैं न्यूज़ एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को अपनी ओर से और पूरी भलेसा की आवाम की ओर से धन्यवाद करूंगा। जो राइट हैं लोगों के, उनका जो है उनका इजाला कर रहा है, उनकी मांग जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा रहा है। ये जो अवार्ड मिला है इस चीज़ के लिए न्यूज़ 18 उर्दू जो था वो मुस्तहिक था, वो इसका मुस्तहिक था, हकदार। न्यूज़ 18 उर्दू को चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने पर जिला कठुआ के कई सरकर्दा शहरियों, सियासतदानों और समाजी कारकुनों ने मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना है कि यह चैनल आम लोगों का तर्जुमान बन गया है। नमस्कार, मैं संजय राजदान और मेरे साथ जो आज मंच पे हैं एडवोकेट बिशा जी, हमारे मेंबर रहन पंचायत से यूकरन जी, हम सभी बसोली वासी आज
न्यूज़ 18 उर्दू की टीम को तहे दिल से उनकी जो आज उन्होंने एक बुलंदी को हासिल किया है और आज उनको जिस अवार्ड से नवाजा गया है, पूरी की पूरी टीम को हम सभी बसोली निवासी तहे दिल से उन्हें बधाई देते हैं। आज जानकर बड़ी खुशी हुई, न्यूज़ 18 उर्दू को नेशनल अवार्ड दिया गया है उसकी बेस्ट कवरेज के ऊपर। तो मेरी तरफ से मैं सबको, पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनके अच्छे काम को। हर प्रकार की आपने न्यूज़ को जिस प्रकार से सामने अपनी सच्चाई रखी हुई है, तो आगे भी ऐसा ही काम आप करते चले। बॉर्डर से जुड़े हुए लोगों की तरफ से फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई न्यूज़ 18 उर्दू में काम करने वाली पूरी टीम को मेरी तरफ से, और आप ऐसा ही काम करते रहें। 18 उर्दू चैनल को जो नंबर 1 का खिताब मिला है उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने आम जनमानस के मिसाइल को उठाया है, ऐसे में शुभकामनाएं देता हूं इनकी पूरी टीम को। और एक बार फिर कठुआ की तरफ से मैं न्यूज़ 18 उर्दू को बहुत बहुत बधाई देता हूं। न्यूज़ 18 उर्दू को साल का बेहतरीन और नंबर 1 न्यूज़ चैनल का एजाज़ हासिल होने पर करगिल के अवाम और सहाफ़ियों ने मुबारकबाद पेश की है। सहाफ़ी बरादरी का कहना है कि न्यूज़ 18 उर्दू ने करगिल के दूर दराज इलाकों के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने में काबिल सताइश काम अंजाम दिया है। वाक़ईतन ये सुनकर खुशी हुई कि न्यूज़ चैनल 18 उर्दू को इस साल का चैनल ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये हम तमाम लोगों को खुशी की बात है, तमाम उर्दू तबके के लिए एक फ़ख्र की बात है। खुसूसन हम लद्दाख के ताल्लुक़ से बताएंगे कि न्यूज़ चैनल 18 ने हमारे मसाइल को दूर दराज इलाकों जैसे जानस्कर, नुब्रा वैली, द्रास जैसे सरहद तरीब मुकाम से भी इन्होंने अपनी तन मन धन की कुर्बानियाँ दे करके हमारी आवाज़ को अफसराने वाला तक पहुँचाया है। और उर्दू की खिदमत के मसले में भी ये सफ़े अव्वल के हमारे नुमाइंदे हैं। ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि न्यूज़ 18 उर्दू को चैनल ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो वाकई न्यूज़ 18 उर्दू जो है उर्दू की बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। जगह जगह जो है ये उर्दू को प्रमोट कर रहे हैं। उर्दू की प्रमोशन के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के ज़ोमा जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हुई। और हम अपनी तरफ से भी मुबारकबाद देना चाहेंगे न्यूज़ 18 के तमाम ज़ोमा को, खुसूसन जो हमारे खिते लद्दाख में काम करते हैं उन्हें भी। तो सबको करगिल में छोलीचंद बटालियन इलाके के पंचों और सरपंचों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उन्होंने इलाके के स्कूल की अपग्रेडेशन करने पर यूटी इंतजामिया, LHDC करगिल, कमिश्नर सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन समेत दीगर आला ओहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। प्रेस क्लब लद्दाख करगिल में तलबा के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि यूटी इंतजामिया ज़ंस्कार के तलबा के मसाइल हल करने में नाकाम रही है। तलबा ने कहा कि उन्होंने RTI के जरिए मुख्तलिफ महकमों में उम्मीदवारों के मुंतखब होने की जानकारी तलब की थी, लेकिन मालूमात फराहम नहीं की गई है। उन्होंने रोजगार पॉलिसी के ऐलान का मुतालबा किया। DSSRB का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें अनफेयर जैसा हो रहा है और काफ़ी स्टूडेंट का, मेरे पास 1114 स्टूडेंट का लिस्ट था, वो मैंने पेश किया। फिर उसके साथ काफ़ी हमने यही बोला कि जो कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ, जो नहीं हुआ, दोनों का कॉपी हमें शो करें। इसमें जो हायर सेकेंडरी स्कूल पदों में जो कॉमर्स स्ट्रीम है वो बिल्कुल है ही नहीं सर। लास्ट ईयर साइंस का स्ट्रीम इम्प्लीमेंटेशन किया था सर। इस साल हमें यही चाह रहा है कि आने वाले टाइम में कॉमर्स स्ट्रीम पदम के मॉडल डिग्री कॉलेज है और इस हायर सेकेंडरी स्कूल दोनों में, और काफ़ी वैकेंट पोस्ट है काफ़ी सेक्टर में भी। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SA हसनैन ने कहा कि हिंदो पाक के बीच अमन कायम करने के लिए इक़दामात करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने ताहम कहा कि पाकिस्तान को मज़ीद ज़िम्मेदाराना तरीके से आगे आना होगा। बारामूला में फ़ौज की जानिब से मुनक़दा एक इंटरेक्टिव सेशन में शिरकत के बाद हसनैन ने मीडिया से बात की। खासी तादाद में नौजवान, सरकर्दा शहरियों और दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की। मुश्किलात इसलिए पेश आती हैं कि हमें कभी मालूम नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी है, कौन चला रहा है हुकूमत वहाँ पर। एक दिन तो वहाँ से न्योता आता है कि हम हाथ बटाएं, हम अमन लाएं, हम पिछले दिनों को भूल जाएं, हम ट्रेड के अंदर शिरकत करें, चीनी और कपास का आसपास आर पार ट्रेड करें, और 24 घंटों के अंदर वो कैंसिल हो जाता है। तो इसमें तो लगता है कि
کس کا ہاتھ ہے اس میں؟ کیا فوج کا ہے کہ انتظامیہ کا ہے, حکومت کا ہے؟ تو یہ ذرا کنفیوژن تھوڑا دور ہو جائے پاکستان کے اندر تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ چین اور امن آ سکتا ہے. تو اس امید کے ساتھ آئے ہیں کہ اس سال کی شروعات جو ہے, کشمیر کے اچھے دنوں کی شروعات جو ہے اس طرح کی بات چیت کے ساتھ, وارتالاب کے ساتھ ہو. اسی کا موقع کا میں نے فائدہ اٹھایا اور بارامولہ آیا, کیونکہ بارامولہ میرا پرانا علاقہ ہے, شہر خاص کے ساتھ میرا خاص پیار ہے. تو میں اسی کے لیے یہاں پر آیا اور شرکت کی اسی ہال میں جس کی شروعات میں نے کی تھی اس وقت کہ کسی وقت تقریباً 12-13 سال پہلے. تو یہ صرف بارامولہ کا, کشمیر کا پیار جو ہے وہ کھینچ کر لایا ہے یہاں. پولیس اسٹیشن بیڑوا اور پولیس اسٹیشن ماگام میں ایس ایس پی بڈگام طاہر سلیم نے خواتین کے خلاف گھریلو تشدد اور دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے وومنز ہیلپ ڈیسک کا افتتاح کیا. ایس ڈی پی او ماگام شوکت احمد اور ایس ایچ او ماگام اور بیڑوا موجود تھے. سی آر پی ایف کے افسران نے بھی شرکت کی. گاندربل میں فوج نے ویمن کرکٹ چیمپئن شپ منعقد کی. گورنمنٹ کالج آف فزیکل ایجوکیشن گاڈورا کرکٹ اسٹیڈیم میں مقابلے ہو رہے ہیں. ناک آؤٹ کی اساس پر منعقد ہو رہی چیمپئن شپ میں وادی کی 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. 24 راشٹریہ رائفلز کے کمانڈنگ افسر نے کھلاڑیوں کو اس موقع سے بھرپور استفادہ کرنے کا مشورہ دیا. کپواڑہ اور گاندربل کی ٹیموں کے بیچ افتتاحی مقابلہ منعقد ہوا. ساؤتھ کشمیر سومو ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے اننت ناگ میں ٹریفک کی بدنظمی کو دور کرنے کے اقدامات پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. اننت ناگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ایسوسی ایشن ممبران, میونسپل کونسل, پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک جام اور گاڑیوں پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات کی وکالت کی. روٹس لگن باضابطہ بورڈ, پیسنجرس گھس تکلیف ون کی سڑکن پہ گاڑین پرارن تم واتن ام سن برابر سٹینڈن مز یت گاڑی نیران تم واتن توتن تم کھسن تمن گاڑین مز اور کھانا تکلیف وات یم پتہ سواری یم سات پیسنجرس کھانا تکلیف وات تم واتن اس نشن تم ون اس نشن گاڑی کن جائے تہ گاڑی پیسنجر حضراتوں کو 2-4 دن تک تھوڑی بہت پرابلم ہو جائے گی, لیکن ان کو ہم اناؤنسمنٹ کریں گے کہ کہاں سے کہاں, کس گاؤں سے کہاں گاڑی نکلتی ہے. وہ سیدھے اسی اسٹینڈ میں آئیں گے, جبکہ ہم ان کے وہاں سروس دیں گے برابر 6 بجے 7 بجے تک. لیکن کچھ دنوں میں یہ تھوڑا پرابلم ہو جائے گا, انشاءاللہ ان قریبی حال ہو جائے گا. گو گرین پامپور نامی ایک رضاکار تنظیم نے تحصیل انتظامیہ پامپور کے اشتراک سے زعفران کے کھیتوں میں موجود کوڑا کرکٹ کو ہٹایا. تنظیم کے چیئرمین سید ندیم قادری نے کہا کہ کوڑا کرکٹ جمع کرنے سے ماحول پر برا اثر پڑ رہا ہے. تنظیم نے اپنے خرچے پر JCB کے ذریعے یہ کام انجام دیا. تحصیلدار پامپور اشتیاق محی الدین نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ زعفران کے کھیتوں میں کوڑا کرکٹ نہ ڈالیں, بصورت دیگر قانونی کارروائی کی جائے گی. BSF اور CISF میں بھرتی کی مانگ کر رہے امیدواروں نے کٹھوا میں احتجاج کیا. پینتھرز پارٹی کے بینر تلے یہ احتجاج کیا گیا. پینتھرز پارٹی کے ضلع صدر نے الزام لگایا کہ حکومت نوجوانوں کو نظر انداز کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ 370 کی منسوخی کے بعد نوجوانوں کے مسائل پر کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے. انہوں نے جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کی مانگ کی. بڈگام پولیس نے کل ماگام کے علی محمد کی لاش برآمد کر لی تھی. SSP بڈگام کا کہنا ہے کہ ابتدائی جانچ کے مطابق یہ قتل کا معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ متعلقہ شخص ڈرگس کا استعمال کر رہا تھا اور وہ اس کی موت کا سبب بنا. ان کا کہنا ہے کہ میڈیکل رپورٹ ملنے کے بعد حقیقت سامنے آئے گی. بتایا گیا ہے پلمونری کارڈیو پلمونری اریسٹ. تو اینڈ دیر سیمز ٹو بی نو مارکس آف انجری اینڈ پوسٹ مارٹم کے دوران وہ ہاسپٹل اتھارٹیز کو کچھ پاؤڈرڈ سبسٹنس بھی ملا. تو اپریٹلی سیمز ٹو بی ڈرگ ایڈکٹ پرسن. اس کی ایج قریباً 30 سال کے آس پاس تھی. پولیس کا کام ہے اس میں انویسٹیگیشن ٹھیک سے کرنا. 174 کا آبجیکٹیو یہی ہے کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے اس کو ایسرٹین کرے. ٹھیک. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جلد صحت یابی کے لیے حلقہ ہوم شالیبک کے پارٹی کارکنوں نے ایک دعائیہ مجلس منعقد کی. کھنابل اننت ناگ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت سابق اسمبلی ممبر ایڈوکیٹ عبد المجید لارمی نے کی. ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی گئی.
हिंदवा के बीच सीजफायर माहदे की पासदारी की वजह से सरहदी इलाकों के लोगों को अमन नसीब हुआ है। लोग अब मामूल की सरगर्मियों में हिस्सा लेने लगे हैं। अखनूर में गवर्नमेंट हाई स्कूल कोई मिलन के तलबा का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से उनकी तालीम मुतासर होती थी, ताहम अब वो पाबंदी से स्कूल जा रहे हैं। पाकिस्तान फायर करता था तब हम बहुत डर डर के स्कूल आते थे, और जब हम स्कूल में पढ़ाई करने लगते थे तो अचानक फायर स्टार्ट हो जाता था। इसलिए हमारी सरकार से ये अपील है कि पाकिस्तान का कोई पक्का इलाज किया जाए। जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में DGMO की मीटिंग हुई है तब से हमारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और हमारा पढ़ाई में बहुत मन लग रहा है। ये डर बैठा रहता है कि पाकिस्तान कभी छुपकर फायर कर दे। पाकिस्तान एक कायर देश है, वो कभी भी फायर कर सकता है, इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए।